are discussing a new topic. Okay, new topic, new chapter. Each and everything will be new. Okay, you know what is the name of the topic? Hmm? What is the topic of? Force and law of motion. Third force and law of motion. Yes, yes, very good. And laws of motion. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. So actually, as you know, motion. What is motion? If I ask you, what is motion? So please tell me, anyone? Anyone? What is motion? Anyone? What is motion? पढ़ चुके हैं. A body is said to be in motion when it changes its position continuously with respect of some stationary object. Okay. You can use surrounding words instead of constant. Not necessarily each and every body should be in the constant or rest position. Okay. So the perfect word is surroundings. In surroundings, maybe object in rest or in motion is also. Okay. So right. Motion means whenever anything changes the position with respect to surroundings, that is called motion. Now the question is, who is responsible for that? What is the reason behind the motion of any object? क्या कारण है? What is the reason जिसकी वजह से मोशन होता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है फोर्स. When we apply some force on the body, that is why, or due to these reasons, object will be in motion. So now the question is, what is force? So today we will discuss about the topic. The name of topic is force. So मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, what is force? According to you, not necessarily you will answer very perfectly. You can anything. You can say anything. Which you think? What is force? जो भी आप सोचते हो उसके बारे में, आपके हिसाब से फोर्स क्या हो सकता है, मुझे बताओ. यस, फोर्स तुम्हारे हिसाब से क्या है? Can I? Yes, anyone. Force is push or pull of an object resulting from the object interaction with another object. Okay, ठीक है. Okay. You say क्या नाम है आपका? किसने बताया अभी? शुभम ने? ओके, तो अभी आंसर दिया किसी ने कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. ओके, वेरी नाइस. ये एक मेरे पास बोतल है और मैं इसको ऐसे दबाता हूँ या मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ या पुल करता हूँ. So there is motion. अब मुझे ये बताना कि if push or pull is force, so what is this? This is what? It is force or it's a push or pull? बताइए.
जो मैं कर रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है? Definitely it's not a push or a pull. Am I right? Yes, sir. If yes, then क्या ये अभी जो हो रहा है ये फोर्स नहीं था, ये पुल? क्योंकि हम अभी मैं कह चुका हूँ बिना अभी मैंने आपसे कहा था कि बिना फोर्स के कोई बॉडी मोशन में नहीं आएगी। सो व्हाट इज दिस? अब कैसे बोलोगे इसको? बट मुझसे बातें कीजिए तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूँ। यस ना नो? Sir, force is an interaction that when a body up to another and apply motion and motion. So yes, so definitely push or pull is not a force. It may be force. It may be force, but push and or pull is only the force is wrong, right? तो अब कैसे बनाएं definition? ओके, मेरे हाथ में फिर से ये मास्क है, मैंने लिया इसको ऐसे 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 कर दिया। ये पुश और पुल तो नहीं है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये स्नाइडर पुश और पुल, बट इट इज स्टिल फोर्स। एम आई राइट? Yes, sir. तो फिर अब कैसे बनेगा फोर्स? तो फोर्स की डेफिनेशन कैसे सामने आएगी आपके? बोलिए। आज हम केवल फोर्स की डेफिनेशन ही सीखेंगे केवल। इसलिए को टाइम दूंगा मैं आपको, क्योंकि यदि फोर्स समझ में नहीं आया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपको फोर्स समझ में आएगा। सो फिर बोलिए। सो इट्स रॉन्ग कि पुश और पुल इज फोर्स। अब कुछ और बताइए। Sir, can I? यस प्लीज। The physical phenomena which changes or tends to change the position or the state of motion or shape of an object is called force. ओके ओके, और कोई? Sir, can I? यस प्लीज। Sir, it is an external agency which tries to change the shape, size, direction, motion of a body. गुड गुड, वेरी गुड। तो बड़ा समझो बात को। कोई फोर्स जो होता है ना बच्चों, फोर्स हमेशा इसको पुश और पुल हम जब हम लोग छोटे थे आपको बताया गया था, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में फोर्स केवल ये नहीं होता कि हमने पुश कर दिया या हमने किसी को पुल कर दिया। फोर्स ध्यान बेटा 3 काम करता है। फोर्स 3 काम करता है। फर्स्ट, इट कैन चेंज द पोजीशन। ये यहाँ था, यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया। ये यहाँ था, मैं इसको यहाँ ले आया। ये क्या हो गया? इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पता है आपको? पोजीशन चेंज हो रही है। यस,
तो ये हो गया पहला काम, ये काम फोर्स करता है। दूसरा काम शेप, ये मास्क है, सबको दिखाई दे रहा है। अब यदि मैंने आपको ऐसे दिखाया होता, अब बताओ ये क्या है? मैं छुपा रहा हूं। अच्छा, ये मेरे पास दो है, इसमें से कौन सा वाला मास्क है? बताओ। सर नहीं पता। नहीं पता, सर राइट वाला। लेकिन अब पता है। यस सर। तो ये अभी आपको क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैंने इसका शेप बदल दिया। देखो अभी ये दोनों का शेप एक सा लग रहा है, लगभग लगभग एक सा शेप है ना? लेकिन क्या हुआ, यस सर। इसे खोला आपने, तो आपने इसे खोला तो आपको समझ में आ गया वो ये क्या है, एक रुमाल है और एक मास्क है। Okay, so the second work which will be done by the force is change the shape. तीसरा काम ये करता है, साइज को बदलता है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रुमाल है, हैंकी है, हैंकरचिप। ठीक है। अब इसका ये किस शेप का है? स्क्वायर। ओके, अब ये किस शेप का है? रेक्टेंगल। पहले वही था। अब रेक्टेंगल है। यस सर। अब क्या है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और अब रेक्टेंगल। तो क्या बदला इसमें? इसमें क्या बदला इस पूरी प्रोसेस में, जो अभी मैंने पिछले 2 3 4 5 के फोल्ड किए, इसमें क्या बदला? सर इस पे ये कि साइज चेंज हो रही है। सिर्फ साइज बदला है बेटा, इसका शेप नहीं बदला। शेप तो इसका पहले भी रेक्टेंगुलर था, अभी भी रेक्टेंगल है, लेकिन क्या बदल गया? साइज। साइज। हाँ, और अब शेप। ओके, दैट मीन्स फोर्स कोई ऐसी चीज है, कुछ है, समथिंग इज which can change the position, which can change the shape, or which can change the size. So that is called force. Force कुछ है, लिखाऊंगा आप लोगों को। फोर्स कुछ ऐसी क्वांटिटी, ऐसी कुछ चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो पोजीशन या शेप या साइज को बदल देती है, उसे हम कहते हैं फोर्स। समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। समझ में आ गया? अब फिर देखो, ये क्या है? डस्टर। क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। क्या इसका शेप बदला? नो सर। नो सर। साइज? नो सर। पोजीशन? नो सर। नो सर। क्योंकि मैं थक गया यार। तो ये फोर्स नहीं था क्या? सर था। सर था।
ऐसी ही बात किसी ने बताई तो फिर क्या हुआ, पहले तो ये कहा गया कि फोर्स वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसकी पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन बाद में इसको ठीक किया गया। उन्हें कहा गया फोर्स वो है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप और साइज को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। सो ये किस में आएगा, ये किस में आएगा? सर प्रयास। ट्राई टू फोर्स चेंज। सब जो ट्राई हो रहा है। हाँ, ये फोर्स तो है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस में आ गया? ये आ गया कि फोर्स को जरूरी नहीं है कि उससे कि हम फोर्स लगाएं, और वो जैसे मान लो कहीं पर एक क्विंटल का पत्थर रखा हुआ है और मैंने आप में से किसी एक से कहा कि जाओ इसको धक्का लगा के इसको हटा के आओ, क्या आप हटा पाएंगे? नहीं। लेकिन क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? लगाया। तो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स। तो तब ये एक डेफिनेशन सामने आती है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can change or try to change the position, shape or size of the object. Note down. अब इसको आप लिखिएगा, what is force? तो लिखिएगा force is an external agent force is an external agent which can change or try to change, which can change or try to change the position, comma, shape or size of the object. Position, shape or size of the object. Force is an external agent which can change or try to change the shape, motion, position, shape and size of the object. Yes. फिर लिखना, it is of two types basically. No, it is of two types. It is of two types. Number one, balanced force, and number two, unbalanced force. Balanced force or unbalanced force. बच्चों फिर से समझना, दुनिया में कई तरीके के फोर्स होते हैं, पढ़ेंगे आप लोग अक्सर करके, जैसे कि मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तमाम तरह के फोर्स होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे फोर्स दो ही तरीके के होते हैं, आइदर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो अब हम पहले बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स की। टॉपिक क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड फोर्स।
हाँ जी, बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? सर इक्वल। इक्वल है, अच्छा ठीक है। मान लो इक्वल फोर्स ऑन बोथ साइड। नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि बैलेंस का मतलब, ना कि बैलेंस फोर्स। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बताओ। Proper, not more, not less. बैलेंस, ठीक है। और कोई? What is balance force? Oh, what is the meaning of balance? किसी ने कहा था अभी, किसी ने कहा था कि इक्वल नंबर है, समझते? किसने कहा था ना? किसने कहा था? किसी बच्चे ने अभी कहा था ना कि इक्वल नंबर होते हैं, ऐसा कुछ। किसने कहा था? नहीं पता। जी बेटा। हाँ, मान लो कि अपन ये बात सोचते हैं कि जिसमें नंबर बराबर होते हैं तो उसे बैलेंस हो जाता है। अब मान लो मुझे एक मैच खिलवाना है कबड्डी का। 12th के बच्चे हैं, 7 बच्चे मैंने 12th के ले लिए और 7 बच्चे मैंने क्लास फर्स्ट के ले लिए, ठीक। उनके बीच में मैच करवाया, कौन जीतेगा? 12th class students. अच्छा, तो 12th के स्टूडेंट ना, ओके। फिर मैंने दूसरा मैच करवाया, अब कौन जीतेगा? बोलो भाई। फिर तीसरा मैच करवाया, 12th. 100 मैच करवाए, 12th. क्यों एक भी मैच वो नहीं जीत पाएंगे फर्स्ट वाले? No, sir. क्यों? Sir, because the age of 12th class are more एज क्या stronger. होती है? एज क्या होती है? एज क्या होती है? नंबर तो बराबर है ना। चल ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, 12th में 7 बच्चे रहेंगे और क्लास फर्स्ट में 20 बच्चे रहेंगे। अब बोलो, अब ठीक है? Not balanced. अभी भी नहीं? आपके हिसाब से अभी भी बैलेंस नहीं है? देखो बच्चों, समझो बात को, आप इसको बैलेंस नहीं कह सकते, भले संख्या बराबर है। अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग 2 टीम बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल वैल्यू के। अच्छा चलो एक और काम करते हैं हम लोग, हमने 2 टीम बनाई, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, एक टीम में हिंदुस्तान के सबसे जो टॉप 11 बैट्समैन थे वो लिए, ठीक है। अब वो बात खत्म करती हूँ। और दूसरी टीम में हिंदुस्तान के जो टॉप 11 बॉलर थे वो लिए,
अब उनके बीच में मैच हुआ, कौन जीतेगा? अरे सर दोनों जीत सकते हैं, दोनों के चांसेस हैं। कैसे? सर एक तरफ बेस्ट जो बैटिंग करते हैं वो एक तरफ बेस्ट बॉलर्स है, तो बैलेंस होगा। बॉलिंग वालों को बैटिंग नहीं आती, बैटिंग वालों को बॉलिंग नहीं आती, फिर कैसे? आप क्या इस टीम को बैलेंस टीम मानेंगे? हमारे लिए बैलेंस टीम क्या होती है? यदि मान लो इंडिया की टीम के बाहर खेलने जाएगी तो वो 11 बैट्समैन लेके जाएंगे या 11 बॉलर लेके जाएंगे? ना तो वो 11 बैट्समैन लेके जाएंगे और ना ही वो 11 बॉलर लेके जाएंगे। उसमें क्या होगा? उसमें एक तो कंफर्म विकेट कीपर होगा, राइट? उसमें 3-4 प्योर बैट्समैन होंगे, उसमें 3-4 प्योर बॉलर होंगे। प्योर बैट्समैन से मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ जिनको बैटिंग बहुत अच्छी आती है, बॉलिंग ना चलेगा, ठीक है ना? जैसे कि अपनी टीम में कौन कौन है जो प्योर बैट्समैन है? अपनी टीम में कौन कौन है जो प्योर बैट्समैन है इंडिया की टीम में? क्रिकेट में कैप्टन है हमारा विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन भी है। दे आर वेरी गुड बैट्समैन बट नॉट बॉलर, ओके। कुछ प्योर बॉलर होते हैं, उन्हें बैटिंग नहीं आती उतनी, चलेगा। कुछ बैट्समैन वो ऐसे लेते हैं जिन्हें बैटिंग भी आनी चाहिए और बॉलिंग भी आनी चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि नाउ दिस इज बैलेंस टीम। बस ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में अभी आप सभी लोग बैठे हुए होंगे, या तो पलंग पर बैठे होंगे या चेयर पर बैठे होंगे, हो सकता है आप में से कोई जमीन पर बैठ के पढ़ रहा हो, am I right? तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ, इसमें खुद भी हूँ, मैं इस पर चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं किस पोजीशन में हूँ? आइदर बैलेंस और अनबैलेंस। एक्चुअली आई एम इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड। मतलब मीनिंग ये है, जितना फोर्स मैं चेयर पे लगा रहा हूँ, चेयर भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगा रही है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। इसी वजह से मैं इस चेयर पर बैठा हुआ हूँ, आप अपने पलंग पर बैठे हुए हैं या अपनी चेयर पर बैठे हुए या वो जमीन पर बैठे हुए हैं। So whenever any equal and opposite force are acting simultaneously at any point, so this means it is imbalanced force. जैसे कि ये है, मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स कैसा है? इक्वल है और अपोजिट है, तो ये क्या है? बैलेंस। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, एक ही समय पर होना चाहिए, तो उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बस इसकी एक कमी होती है, बैलेंस फोर्स से कभी मोशन पॉसिबल नहीं है। यू कांट मूव द बॉडी विद बैलेंस फोर्स, यू कांट, ठीक है, यू कांट द बॉडी मूव द बॉडी, ओके। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है या इसकी स्ट्रेंथ भी है, यानी कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा हो और बॉडी रेस्ट में हो, ध्यान रखना बेटा, फोर्स लग रहा है और बॉडी रेस्ट में है, तो उसे कहते हैं हम लोग
balance force. Okay, so please note down. When two forces of equal magnitude but acting in opposite direction, on an object simultaneously, एक साथ, then the object continues in state of rest, in its state of rest, or of uniform motion in a straight line. Such forces acting on the object are known as balanced force. अच्छा, ये बताइए मुझे, आप में से कोई भी बच्चा वॉलेंट्री जो लैपटॉप से पढ़ रहा हो, वो मुझे अपना नाम देख के मुझे यस लिखे जल्दी से, जो लैपटॉप से पढ़ रहा हो। आप में से जो बच्चा लैपटॉप से पढ़ रहा हो वो यस लिखे जल्दी से। कोई नहीं है? यस, नकुल अग्रवाल। बेटा आप एक काम करेंगे, आप सबसे पहले अपना माइक खोले, वो अपने वो कैमरा खोल करके इस तरह से रखेंगे और आप थोड़ा वहां पर आपके पास में बाहर जो जमीन होगी, जो भी फर्श हो उस पर खड़े हो जाओ, ये करो। और सारे बच्चे नकुल को पिन कर ले, जिससे कि वो ही दिखाई देगा पूरी स्क्रीन पर। नकुल अपना कैमरा खोले, गुड। हाँ, थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे खड़े रहे जिससे सबको दिखाई दे आप। बस अब आपको वो करना है जो हम आपसे करने को कहेंगे। सारे बच्चों को दिख रहा है ना? चलिए बेटा सीधे खड़े हो जाओ और हाफ लेफ्ट टर्न मारो, हाफ लेफ्ट टर्न। ओके, ठीक। अब आपको एक काम करना है, पैर वहीं रखना है और आगे की तरफ झुकना है, आगे की तरफ झुकते जाओ, बस। ओके, थोड़ा सा बेटा पीछे आ जाओ जिससे सबको दिखाई दे, थोड़ा सा पीछे जाओ बेटा। हाँ, अब फिर से पैर वहीं रखना बेटा, आगे झुकना, और जब लगे कि गिरने लगो तो फिर जो चाहो कर लेना। ओके, आगे झुको, आगे झुकते जाओ। ओके, ठीक है।
अब आकर के बैठ जाओ और मेरे कुछ प्रश्नों का आंसर दो। नकुल, आप मुझे यस सर। हाँ, मैंने जब तुमसे ये कहा था कि आगे झुको तो क्या हुआ? आप आगे आप क्या हुआ? गिरने लगे थे, आपको लगा कि मैं गिर जाऊं, ऐसा हुआ था? यस सर। फिर आपने क्या किया? आपने एक पैर आगे की तरफ कर दिया। सर सपोर्ट। आपने अपना एक पैर आगे की तरफ कर दिया हुआ है ना। अब आप बड़ा चाहो तो वीडियो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी बात मैं आपसे वैसी बात कर लूंगा। ओके, हाँ बेटा। तो बच्चों, नकुल अब मुझे आंसर दो कि जब आप आगे की तरफ झुक रहे थे तो क्या हुआ था कि आपको लगा आप गिरने वाले हैं, am I right? यस सर। तो फिर क्या किया आपने? उससे बचने के लिए आपने एक पैर आगे बढ़ा दिया हुआ है, राइट ना? तो अब बैलेंस हो गए होंगे। यस सर। बस इसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। आपने कभी ध्यान देना कि जब हम लोग दौड़ लगाते हैं तो हमारा शरीर का हिस्सा आगे की तरफ होता है और हमें लगता है कि हम गिर ना पड़े, तो उससे गिरने से बचने के लिए हम आगे की तरफ अपने पैर रख के चले जाते हैं और मोशन चालू हो जाता है। तो ध्यान देना बेटा, अनबैलेंस फोर्स वो होते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन आता है, राइट? सो प्लीज नोट डाउन। When two forces of unequal magnitudes act in opposite direction on an object simultaneously, then the object moves in the direction of large force. These forces acting on the object are known as unbalanced force. ठीक, बैलेंस फोर्स में दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स होती है, और इसमें क्या होता है बच्चों, कोई एक फोर्स ज्यादा होगा और जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये मैंने अभी आपको क्लास की बैकग्राउंड बताई है, फोर्स क्या होता है और फोर्स कैसे होती है, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है? अब हमको इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ओके? कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इस क्लास को बंद करते हैं, टाइम ओवर हो